Bismillahirrahmanirrahim. Hi everybody, I am Zohar Rahman Jamali. I thank my Allah for the blessings that He has granted over me, and I'm really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. At the start of my video, I would like to request my viewers to subscribe my channel, share my videos, click the button of liking, and put your comments below in the description so that I will know that whether my videos are working for you or not. As you know that day before today, my video or my vlog was on the spoken language, but today my vlog or my video will be on the CCE exams, combined competitive exam. So you know that we are learning composition and précis. We are learning composition and précis. This is our question paper. We are preparing ourselves about this question paper. So for that, I started from the basic English grammar, and I will end up to the précis. Up to the précis and composition, many more things you are going to learn on this lecture. And you know that I talked a few days back on the voice, but today the topic that I have selected, it also keeps much importance from the examination point of view for the candidates. And those candidates who they are aspiring to appear in such type of exams, they need to watch my video from the start till the end. So they will get the information about the topic they are looking for. So this is the reason that the topic that I have selected today as the speech, narration, as the narration. Narration is of two types. Narration is of two types. Narration is divided into two types. When a person speaks, for example, you are learning at a private institution, you are learning something from there, and you are attending a private institution. So you go there and you start taking your classes from there, and all of a sudden the principal of that center announced change in the time, or changing anything, or changing the rules or regulations or whatsoever. When you return back from that institution back to your home, and you speak the original words, of the principal in front of your parents, in front of your colleagues, that's called the direct speech. But at the same time, if you repeat the meaning of the original person, you do not repeat the same words what the original writer, what the original speaker said, but you give only the meaning, not the original words, not the original sayings, but the original meaning. This original meaning is called the indirect speech, or it is called the reported speech. सपोज करें आप कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे पढ़ने जाते हो, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वहाँ का, वो अनाउंस करता है कि भाई कल जो है हमारा टाइम कुछ चेंज होगा, यहाँ रूल्स के बारे में वो कुछ तब्दीलियाँ लाता है। तो वो बात जब आप जाते हो घर पे, तो आप जो है अपने घर वालों से बात करते हो, कहते हो कि सही प्रिंसिपल ने ये बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि कल जो फीस नहीं लाएगा उसको हम निकाल देंगे, और कल जो टाइम पे नहीं आएगा उसको हम निकाल देंगे, उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे,
जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, जैसे ही प्रिंसिपल ने जैसे लफ्ज बोले वैसे के वैसे बिना किसी चेंज के आपने आके अपने वालिदैन को बताए या अपने दोस्त को बताए या अपने कलीग्स को बताए, तो इस स्पीच को आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच। इस स्पीच को आप कहते हो डायरेक्ट स्पीच। when the exact words of speaker are repeated without any change, जब आप स्पीकर के वर्ड्स वैसे ही रिपीट करते हो जैसे उसने बोले, मिसाल के तौर पे you are my students, आप मेरे शागिर्द हो, आप मेरे शागिर्द हो। प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल सेड। तो ये जो है आप घर पे आके कहते हो, ये लफ्ज किसने बोले? प्रिंसिपल ने बोले। आप घर पे आके कहते हो कि यू आर माई पेरेंट्स, प्रिंसिपल सेड। प्रिंसिपल ने आज कहा कि आप हमारे शागिर्द हो। प्रिंसिपल ने कहा कि आप हमारे शागिर्द हो। आपने प्रिंसिपल के वर्ड्स बिना किसी तब्दीली के, बिना किसी चेंज के वैसे ही आके बोले जैसे प्रिंसिपल ने बोला। तो इस स्पीच को, इस टाइप की स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर आप ये लफ्ज़ नहीं बोलते, सिर्फ जो प्रिंसिपल की माने हैं, जो प्रिंसिपल का मकसद था वो आके बताते हो घर पे, तो इस तरह की स्पीच को, इस तरह की तकरीर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि प्रिंसिपल सेड we are, principal said we were his students। तो यहाँ पे आप देखते हो कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो प्रिंसिपल ने वर्ड्स बोले वैसे के वैसे बिना किसी एक तब्दीली के आपने वैसे ही ठीक आके बताए अपने पेरेंट्स को। तो इन लफ्ज़ों को आपने कहा कि डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन दूसरे जुमले में आप देख सकते हो कि आप प्रिंसिपल की माने को पहुंचा रहे हो। प्रिंसिपल ने जो लफ्ज़ बोले वो नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ वो बता रहे हो कि प्रिंसिपल का मकसद क्या था। तो प्रिंसिपल सेड वी वर हिज स्टूडेंट्स। तो प्रिंसिपल ने बोला कि हम उसके शागिर्द हैं। प्रिंसिपल बोला कि हम उसके शागिर्द हैं। तो इस टाइप की स्पीच को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इस टाइप की स्पीच को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच को करने के लिए कुछ असूल होते हैं। क्या होता है? कुछ असूल होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को करने के लिए। ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकता है, CCE वालों के एग्जाम में आ सकता है, या PSCS वालों के एग्जाम में आ सकता है ये चैप्टर। तो आपको ये 20 मार्क्स दे सकता है चैप्टर।
अगर आप इस चैप्टर को सही नमूने से समझते हो, सही माने में समझते हो, तो ये चैप्टर आपको 20 मार्क्स दे सकता है। अगर आपको 20 मार्क्स मिल जाए तो आपका तो काम आसान हो जाएगा ना। जैसे कि व्हाट आर द रूल्स इफ reported verb is in present or future, there will be no change of tense in the reported speech. अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्ट जिस वर्ब से आप कर रहे हो वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है वही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो I say you are my brother। मैंने कहा कि आप मेरे भाई हो, तो इसको करेंगे रिपोर्टेड। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, I से दैट आप देते हो फिर भी सही है, नहीं देते हो फिर भी सही है। I से दैट, यू को आप प्लस में तब्दील करोगे, यू को आप ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक तब्दील करोगे। तो ऑब्जेक्ट आपने किसको बोला होगा, I say that you are my को आप किस में तब्दील करोगे, सब्जेक्ट्स के मुताबिक। You are my student, you are my brother, sorry, you are my brother, तो क्यों पढ़ा है? you are my brother, please, you are my brother। I say that you are my brother। So आपने देखा कि reported verb is in present, that there would be no change in the tense of the reported speech। ये जो you are my brother है, इसको हम reported speech बोलते हैं, इसको हम reported speech कहते हैं। Another sentence, he says you are my friend। उसने बोला कि आप मेरे दोस्त हो। He says that you चेंज होगा ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक। मैं ये भी आपको तब्दीलियाँ बताता हूँ, लेकिन पहले इस तब्दीली पे अमल करें। He says that I am, you के साथ आर लगा था तो बी का फर्स्ट फॉर्म क्या है, आर है। आर का दूसरा क्या हो सकता है, एम हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज है इसलिए हमने एम लगाया। ही सेज दैट आई एम हिज, माय चेंज होगा ही के मुताबिक। ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। तो another sentence, another example I would like to share here. She will say you are my son। वो बोलेगी कि आप मेरे बेटे हो। She will say that, you को I में चेंज करोगे, that I am her son।
आई एम हर सन। तो इस टाइप की देखा आपने कि रिपोर्टेड वर्ब इधर भी प्रेजेंट में है, इधर भी प्रेजेंट में है, इधर भी प्रेजेंट में, इधर फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। एक ये बात। If your reported verb is in the present or in the future, there will be no change in reported speech tense. तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो है कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। टेंस में और तब्दीलियां तो आ सकती हैं, एडजेक्टिव्स की तब्दीलियां आ सकती हैं, एडवर्ब की तब्दीलियां आ सकती है, प्रोनाउंस की तब्दीलियां आ सकती है। चेंज इन फॉलोइंग, एडजेक्टिव्स में भी चेंजिंग आ सकती है, एडवर्ब, प्रोनाउन। प्रोनाउन I will change according to subject. I will change according to subject. मिसाल के तौर पे, मिसाल, she says I am very lucky girl. वो बोली कि मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ। She says that ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। She says that I will be changed according to the subject. What is subject? Subject is she, third person. That she is very lucky. She is very lucky girl. Like that. You will be changed change according to ऑब्जेक्ट। यू जो है ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक चेंज होगा। जैसे कि she says you are my friend. आप मेरे दोस्त हो। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हो जुमले को, तो ये जो इन्वर्टेड कामाज हैं ये भी हटानी होती हैं। She says that। अब यू जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट्स के, उसमें जरूर मुझे बोला होगा। She says that I am her friend. और थर्ड पर्सन will never change. थर्ड पर्सन will never change. अब सवाल आता है, मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स का क्वेश्चंस होते हैं। वो कहते हैं कि सर आय से
आर या अनदर सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपके लिए हो सकता है परेशानी हो। ही सेज यू आर he says we are good Muslims. He says we are good Muslims. वो बोला कि हम अच्छे मुसलमान हैं। तो आप कहते हो कि यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करते हो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के मुताबिक वी आर आई को, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या सिंगुलर लगना चाहिए? नहीं नहीं भाई, इधर पे तो प्लूरल है। और ही शी का प्लूरल क्या होता है? ही शी प्रोनाउन का प्लूरल क्या होता है? ये तो सिंगुलर है ना, तो इनका प्लूरल क्या होता है? या तो वी होता है या तो दे होता है बेटा, या तो वी होता है या तो दे होता है। तो इसको हम बोलेंगे ही सेज दैट दे आर, ही में चेंज होगा ना वी, तो वी का प्लूरल है दे आर गुड मुस्लिम्स। तो इन चीज़ों छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं इनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हो। तो और जो जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी कोई तब्दीली नहीं होगी, वो वही होंगे, जो थर्ड पर्सन है वो वहीं पे होगा। जैसे कि आई से ही इज माई फ्रेंड, जैसे कि आई से दैट ही इज माई friend, as my friend. These are the chains of pronoun. Now we look at the chains and adjectives. Now look at the chains in adjectives. What type of chains in adjectives can count? Demonstrative adjectives means that, this will change into that. For example, I say he likes this. मैं कहता हूँ ये इसको पसंद करता है। I say that he likes that. This चेंज हुआ that में, और जो these है वो चेंज होगा those में। सिंगुलर के लिए, वो प्लूरल के लिए। ये करीब वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये दूर वाली चीज़ों के लिए। अगर एक चीज़ है करीब तो उसके लिए हम this का इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो these का इस्तेमाल करते हैं, और दूर एक चीज़ है तो उसमें भी हम that का इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये हम क्यों करते हैं, ये क्यों का आंसर भी मैं देता चलूँगा आखिर में वीडियो के आखिर में मैं आपको ये क्यों का भी आंसर देता चलूँगा, सारी चीज़ें बताता चलूँगा। लेकिन आप स्किप करें टिल द एंड तक, आप आखिर तक मेरे वीडियोस को देखें, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती आप मुझसे जो है कमेंट्स के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि मुझे सर दर्द है या ये चीज़ें या वो चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगा। मुझसे जब भी आप कोई चीज़ पूछोगे इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूँगा, और मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती जवाब देने में, क्योंकि पढ़ाना है तो फिर जवाब किस चीज़ का।
और अब ये तो आ गई चेंजिंग्स एडजेक्टिव्स की। अब हम देखते हैं एडवर्ब्स की चेंजिंग पे। फॉर एग्जांपल टुडे, टुडे है तो ये टुमारो में चेंज होगा। अगर टुमारो है तो ये नेक्स्ट डे में चेंज होगा, ये नेक्स्ट डे में चेंज होगा। सॉरी, टुमारो टुडे है तो येस्टरडे में चेंज होगा। सॉरी, गलती हो गई भाई, येस्टरडे में चेंज होगा। टुमारो है तो नेक्स्ट डे में चेंज होगा। हियर है, हियर है तो देयर में चेंज होगा। और ये फॉलोइंग डे में भी चेंज हो सकता है। फॉलोइंग है तो उसको आप प्रीवियस में चेंज कर सकते हो। ये तब्दीलियाँ आप दोनों से इसकी ला सकते हैं, ये सारी तब्दीलियाँ। अब आते हैं कि हमें और कौन सी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। कंजक्शंस की जगह पे जो हम तब्दीलियाँ लाते हैं तो वो कौन सी तब्दीली होनी चाहिए, कंजक्शंस कौन से लगाने चाहिए। कंजक्शंस में चेंजिंग, चेंज इन कंजक्शंस। आप भाई कंजक्शंस की चेंजिंग जो होती है मैं आपको बताता चलूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपका सेंटेंस इफ यूर रिपोर्टेड स्पीच इज इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, declarative sentence, if your reported speech is in declarative sentence, then there will be, there will be addition of that as a conjunction. For example, I say you are good student। मैं बोला कि आप अच्छे तलबा हो, आप अच्छी शागिर्द हो। I say that बिकॉज हमारा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव है। I say that मैंने किसी को बोला होगा, थर्ड पर्सन ही होगा। I say that you को भी आप रख सकते हो, नहीं तो I say to him that he is a good student, he is a good student, like that। मगर अगर आपका जुमला जो है इंटेरोगेटिव आता है तो फिर आपको कौन सा एडिशनल वर्ड यूज करना चाहिए या कंजक्शन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका ये आ जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाता है। इंटेरोगेटिव आर ऑफ टू टाइप्स। आई ऑलरेडी सेड in my earlier videos, I already told you in my earlier videos that interrogative sentences are of two types. There are two categories of interrogative sentences. One starts with the WH words and second starts with the helping words, or you call them helping verbs, or you call them as auxiliary verbs. Auxiliary verbs एक तो आपके स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और सारी VHW वर्ड से, और दूसरे जो आपके स्टार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से होते हैं। मिसाल के तौर पे he says,
व्हाट आर यू। उसने पूछा कि आप क्या हो। उसने पूछा कि आप क्या हो। इंटेरोगेटिव खत्म हो जाएगा। क्योंकि खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने तो उसकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने तो उसकी बेटा जो है इंटेरोगेशन की जो मार्क है रिमूव हो जाती है, रिमूव कर दी जाती है, रिमूव। जैसे कि ही सेज, ही आस्क्स, क्योंकि ये पूछ रहा है। ही आस्क्स व्हाट, यू को कहाँ में तब्दील करोगे? जरूर मुझे बोला होगा व्हाट आई एम, व्हाट आई एम, व्हाट आई एम। तो इंटेरोगेटिव मार्क्स भी खत्म हो गई। तो ये यहाँ पे वही रखोगे, इनकी जगह पे कोई भी तब्दीली नहीं आएगी और कंजक्शन कोई भी नहीं आएगा, बस ये खुद ही आएंगे। जैसे कि दूसरा सेंटेंस, शी सेज वाई आर यू हेल्पिंग मी। वो बोली कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो बोली कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो। शी आस्क्स वाई, मुझे ही बोला होगा, यू को मी में तब्दील करो, वाई आई एम हेल्पिंग मी को सब्जेक्ट्स के मुताबिक तब्दील करोगे, हर, वाई आई एम हेल्पिंग हर। So like that, there would be no changes. But if your interrogative sentences starts with auxiliary verbs, then there would be the conjunctions. Either would be whether, or would be either you would use the whether. या तो आप whether का इस्तेमाल करोगे या आप if का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपके interrogative sentences स्टार्ट होते हैं auxiliary verb से, जैसे कि he says, he says, do you know me? उसने बोला कि क्या आप मुझे जानते हो। उसने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो। He asks me, he asks whether, you को me में चेंज करना होगा, whether I know him। या इफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी तब्दीलियां आप कंजक्शंस में ला सकते हो। ये सारी तब्दीलियां, अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो फिर आप क्या करोगे। अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो फिर आप क्या करोगे। चलो इंपरेटिव होता है तो वहां पे हम तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप इन्फिनेटिव कहते हो। तो प्रीपोजिशन का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हो, तो प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस में। जैसे कि ही सेज क्लोज द डोर, उसने बोला कि दरवाजा बंद करो। ही ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर दे रहा है ना, ही ऑर्डर्स तो क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया। तो इसके साथ तो प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करोगे और कुछ भी नहीं होगा। जितने सारे भी इंपरेटिव होंगे ऐसे ही होंगे। मैं आगे चल के इनके टेंसेस में भी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा के आया हूँ कि जब भी नॉन फिनेट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है तो नॉन फिनेट वर्ब डू नॉट एक्सेप्ट चेंज फ्रॉम एनी साइड। नॉन फिनेट वर्ब्स कोई भी तब्दीली नहीं पसंद करते, कोई भी तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भाई क्या है, तो क्लोज क्या है, ये नॉन फिनेट है, इनफिनेट वर्ब है, तो ये तो तब्दीली कोई भी पसंद नहीं करेगा। और
अगर आपके जुमले एक्सक्लेमेटरी टाइप के आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे कि ही सेज ओह आई एम लॉस्ट। वो बोला कि मैं भूल गया। वो बोला कि मैं भूल गया। अगर आप कहीं किसी भी शहर में जाते हो, वहाँ से आपको रास्ते वगैरह आप भूल जाते हो, स्ट्रीट्स वगैरह, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट। जैसे कि he exclaimed with sorrow that आय को तब्दील करोगे ही के साथ, he is lost। तो इस टाइप के जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, और कोई भी तब्दीली नहीं होगी। और फाइनल में मैं आपको तब्दीली बताता चलूंगा किस चीज की? टेंस की। I just told my video, I told you that there would be no change in the reported speech tense. There would be no change in the tense of the reported speech if your reported verb happens to be in present or simple. ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने बोला कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। मगर अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब, इफ यू आर रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट, अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट, then there will be following change of tense। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है, पेस में होता है, इसको पेस भी कहते हैं, पेस में होता है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो पेस कहते हैं इसको। और इसको भी आप शेड्यूल नहीं कह सकते, इसको भी स्केड्यूल कहते हैं, स्केड्यूल कहते हैं इसको भी। अगर आप शेड्यूल कहते हो फिर भी सही है, स्केड्यूल कहते हो फिर भी सही है। तो चेंज ऑफ टेंस, फॉलोइंग चेंज होगी। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है तो वो कहाँ पे जाएगी? पास्ट सिंपल में जाएगी भाई, पास्ट सिंपल में जाएगी। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ये तब्दीलियाँ होंगी। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपका ये पास्ट है भाई, अगर आपका पास्ट सिंपल है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मैं इनके मिसाल भी देता हूँ, आपको समझाता हूँ। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो ये तब्दील नहीं होगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये भी तब्दील नहीं होगा। और कौन सी चेंजिंग आ सकती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे I said you are wrong। I said you are wrong। I said that। अगर आप यू का इस्तेमाल करते हो फिर भी सही है जब आपका
ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट्स है मी है तो आप इसको तब्दील आई में करोगे, अगर मी नहीं है ही है तो आप इसको तब्दील ही में करोगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा उसके मुताबिक इसमें तब्दीली आएगी। दैट यू वर रॉन्ग, दैट यू वर रॉन्ग। आपने देखा कि ये था यू आर रॉन्ग, प्रेजेंट सिंपल था तो ये पास्ट सिंपल में चला गया। जैसे कि ही सेड आई डू इट, मैं वो करता हूँ। ही सेड दैट ही डिड इट। और इसके कंटिन्यूस का है अगर तो, अगर कंटिन्यूस का है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर कंटिन्यूस में है तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ही सेड, ये रिपोर्टेड वर्ब है, यू आर डूइंग इट, क्या आप ये कर रहे हो। ही सेड दैट आई वर डूइंग इट। अगर परफेक्ट है he said you have done it, तो ये होगा he said that I had done it। और अगर ये होगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस होगा तो ये सारी तब्दीलियाँ इसी तरह से आएंगी, ये सारी तब्दीलियाँ इसी तरह से आएंगी और कुछ भी तब्दील नहीं होगा। जितने सारे जुमले होंगे इसी तरह के होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी with regard of this teaching, if you have any difficulty with regard of this teaching, you can ask me, you can get the more information about that। और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है भाई। अगर आपका पास्ट सिंपल होता है तो वो किसमें तब्दील होता है। He said you did it, वो बोला कि आपने उसको किया, वो काम किया। He said that I had done it, I had done it। He said I was doing it। He said that he was doing it। ये तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अगर आपका, लेकिन विल को आप चेंज करोगे, अगर विल है तो आप इसको चेंज करोगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, वुड में। अगर शल है तो उसको आप चेंज करोगे शुड में। अगर आपका कैन है तो उसको आप चेंज करोगे कुड में। मे है तो उसको चेंज करोगे माइट में। हैव जो है तो उसको चेंज करोगे मस्ट में। और बाकी जो लफ्ज़ हैं वो तब्दील नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे कुड को आप चेंज नहीं कर सकते,
मुझ को आप चेंज नहीं कर सकते, और ये सारे जितने भी हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। नील डार्ट है या डेयर जो है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो ये डायग्राम है किसका? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और लाइक करते चलो और शेयर करते चलो और डिस्क्राइब भी करते हैं और कमेंट्स भी देते चलो, ताकि मेरी भी हिम्मत अफजाई हो, ताकि मैं और मोर एंड मोर वीडियोस आई शेयर विद यू, सो लाइक दैट। And I would appear with my next video today because I'm going to give a lecture on also spoken English language. So my next video will be on the spoken English language. Those students who they are interested in speaking English language, they can watch my next video, they can wait for my next video on spoken English language. I would appear once again with that video, and until then I say goodbye to all.